Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. Now today I'm going to give you the rest of the portions of the topic insect head, right? In my previous video lecture I had completed the half portion, and in this particular video lecture I deal with the rest portion of that topic, and with this video your that topic will complete. Now if you had not subscribed my channel, please subscribe and share my videos to each and everyone. So the topic head of insects part 2. If anyone didn't saw the first part of this topic, I will provide you the link of that particular video in this video's description box, and also the link of Telegram channel. You should join the Telegram channel, and I will provide you the material that I taught you. नेक्स्ट इज द हेड स्क्लेराइड और एरियाज. ठीक है, इससे पहले फ्यूचर्स हमने कंप्लीट कर लिए. अब नेक्स्ट क्या है, स्क्लेराइड्स और एरियाज. द एरिया दैट कैन बी सीन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द हेड. जब हम एक्सटर्नल सरफेस देखते हैं हेड की, कुछ हमें एरियाज देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज लेब्रम. ठीक है, it is the structure of the head and it is freely attached to the lower margin of the clypeus. मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लाइपियस एक रीजन होता है. इस क्लाइपियस रीजन से दिस लेब्रम, दिस लोअर लिप हैंग, राइट, एंड दिस लेब्रम is differentiated or is separated from this clypeus by the क्लाइपियोलेब्रल suture. ठीक है, तो इट डिमार्केट्स द सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर, दैट क्लाइपियोलेब्रल suture. ठीक है, इट जनरली हैंग ओवर द माउथ एंड ऑल्सो टर्म्ड एज अपर लिप. ठीक है, इट कैन बी मूव्ड अपवर्ड and downward due to the elastic nature of suture. The suture, that is clypiolabral suture, it is elastic in nature and it permits the movement of this labrum. ठीक है, in fluid feeding insects, the insects which feed on fluid like mosquito, butterfly, it undergoes various modifications. Which structure? This labrum, this upper lip undergoes various modifications, which we will discuss later on in the topic mouth parts of insects. It is provided with 3 different types of muscles, right? Lateral muscles, forward and the backward. Labrum. This structure is the labrum, right, and this is the clypeus and this suture is clypiolabral suture, right. Next structure is clypeus. This scleroid is demarcated by the clypiolabral suture in the lower side and clypiofrontal suture in the upper side, or we can say that clypiolabral suture from the anterior side by clypiolabral suture, from the posterior side clypiofrontal suture. It occupies the position, this clypeus occupies the position in between the anterior labral and posterior frontal scleroid. तो यहाँ पर क्या है, this clypeus is the scleroid which is present between this upper labrum and this frons, right. In some insects it is partially modified. कुछ insects में ये पूरी तरह से हाफ जो है कुछ मॉडिफाई होकर कुछ और स्ट्रक्चर बना देती है. दिस क्लाइपियस, राइट, दिस फ्रॉन्स, दिस लेब्रम, इन दोनों के बीच में कौन सा है, क्लाइपियस. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ फ्रॉन्स.
It extends from the anterior clypeofrontal suture. कौन सा suture? क्लाइपियोफ्रॉन्टल suture. कहाँ पर प्रेजेंट है ये क्लाइपियोफ्रॉन्टल suture यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रॉन्स के नीचे, और ये फ्रॉन्स को किससे अलग कर रहा है? क्लाइपियस से, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्यूचर कहाँ से पड़े हैं, जो एरियाज़ हैं इन्हीं के नाम से स्यूचर पड़े हैं, क्योंकि स्यूचर जो है एक बाउंड्री होती है, ठीक है, एक डिवीजन होती है जो दो स्क्लेराइड के बीच में आती है। तो आपने जब भी स्यूचर का नाम देना है वो किस तरह से देना है? जो दो स्क्लेराइड हैं उन दोनों के नाम को जोड़ के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा क्लाइपियोफ्रॉन्टल स्यूचर टू द पोस्टीरियर फ्रंटल suture. It possess the median ocelli. अगर एक है तो ऑसिलस बोलेंगे, अगर बड़े 2-3 है तो ऑसिलाई बोलेंगे. In some cases it may bear the lateral ocelli also. It represents the upper facial region of the head. ये जो फ्रॉन्स है ये अपर वाला रीजन है, फेशियल रीजन है, फेस का जो रीजन है इसको रिप्रेजेंट करता है. सो मैंने आपको फ्रॉन्स रीजन बड़ी बारी बता दिया. दिस इज द फ्रॉन्स रीजन, राइट. और नीचे क्लाइप्योलेब्रल और ऊपर फ्रंटल स्यूचर, ठीक है. इन दोनों स्यूचर, ये दोनों स्यूचर्स के बीच में कौन सा रीजन है? फ्रॉन्स. नेक्स्ट स्क्लेराइट इज एपिक्रेनियम, राइट. एपिक्रेनियम suture separates the एपिक्रेनियम फ्रॉम द फ्रॉन्स. अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फ्रॉन्स के ऊपर कौन आएगा? एपिक्रेनियम. और उन दोनों के बीच में कौन सा suture होगा? एपिक्रेनियम suture, राइट. और जो कैसा suture था? कॉम्प्लेक्स था, वाई शेप था, ठीक है. एंड इट रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द हेड. जो हेड रीजन है उसका जो टॉप वाला पोर्शन है दैट इज एपिक्रेनियम. Next is the occiput. It is a U-shaped and represents the area from the occipital to the post-occipital suture. अब ये कहाँ पर होगा? ये हेड के बैक साइड पे होगा जहाँ पे फोरामन मैग्नम होगा, राइट. ये हमें सामने से फ्रंटल, जब हम फ्रंट स्ट्रक्चर देखते हैं हेड का, ये दिस इज द फ्रंट स्ट्रक्चर, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, इसके पीछे होगा, ठीक है. दैट इज द ऑसिपिट, यू शेप्ड होगा वो, ठीक है. और एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया फ्रॉम द ऑसिपिटल टू द पोस्ट ऑसिपिटल स्यूचर. इसके बाद आ गया पोस्ट ऑसिपिट. इट लाइज बिटवीन द ऑसिपिट एंड द नेक. अब ये किस के बीच में? ऑसिपिट और नेक पोर्शन के बीच में. जो स्क्लेराइट है दैट इज पोस्ट ऑसिपिट. नेक्स्ट इज द जीने. जीने आपको दिख रहे हैं, ठीक है. अभी आपने जीने देखे, दीज आर द जीने. इट रिप्रेजेंट्स द लेटरल एरिया ऑफ द हेड. हेड के लेटरल साइड वाले एरियाज, ठीक है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कंपाउंड आई. कंपाउंड आई से निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं? मैंडिबल. दिस इज द मैंडिबल, राइट. दीज आर द मैंडिबल्स, दीज आर द कंपाउंड आइज. तो किस के बीच में है ये मैंडिबुलर एरिया और कंपाउंड आई के बीच में स्ट्रक्चर है. लेटरल है, दोनों साइड पे हैं. और ये किस स्यूचर से डिमार्केट हो रहे हैं? फ्रंटोजीनल स्यूचर. एंड दिस फ्रंटोजीनल स्यूचर सेपरेट्स द फ्रॉन्स एंड द जीना, राइट. नेक्स्ट इज द ऑक्यूलर. मैंने आपको पहले बताया था ऑक्यूलर स्क्लेराइट कौन सी होगी? ऐसा एरिया जो कहाँ पे होगा? आई के आसपास, ठीक है. दिस इज द ऑक्यूलर रिंग, ठीक है, ये आई के आसपास वाला. एंटीनल स्यूचर, यहाँ पे छोटा सा एंटीनल स्यूचर होगा, सॉरी स्क्लेराइट होगा. एंड दे फॉर्म एन एन्यूलस. यहाँ पे क्या बनेगा? एन्यूलस बनेगा. और एन्यूलस क्या होता है? बेस, एंटीना के बेस पे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एन्यूलस बोलते हैं. दे फॉर्म एन एन्यूलस एट द बेस ऑफ ईच एंटीने. दीज आर द 2 एंटीनेस, ठीक है. इसके बेस में एक स्ट्रक्चर बनेगा एन्यूलस, और वो एरिया होगा. क्या होगा? एरिया होगा. और उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीनल स्क्लेराइड्स, ठीक है. तो पहली स्क्लेराइट हमने पढ़ी लेब्रम, क्लाइपियस, फ्रॉन्स, एपिक्रेनियम, ऑसिपिट. जो आपको फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगी, आपको उसके लिए हेड का बैक पोर्शन देखना पड़ेगा. पोस्ट ऑसिपिट, जीने, ऑक्यूलर स्क्लेराइट एंड द एंटीनल स्क्लेराइट. एंड दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ हेड, राइट.
सो इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।